So, key to budget documents. So what exactly हम जब यूनियन बजट की बात करते हैं, so what are the kind of exact documents that comes out with the union budget? So इस साल का 2021 का budget has already been released in February of this year. And what are the list of documents जो हर साल release होते हैं यूनियन बजट के साथ, वो यहाँ पे written है. So these are the documents जो बिसाइड्स जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो स्पीच देते हैं उसके अलावा, और जो एक प्रॉपर बजट का डॉक्यूमेंट होता है उसके अलावा, और कौन कौन सी चीजें ऐसी रिलीज करी जाती है बजट के साथ, वो यहाँ पे मेंशन है. सो दीज आर सेट ऑफ 10 थिंग्स, 10 डॉक्यूमेंट्स जो रिलीज होते हैं. सो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, फाइनेंस बिल, statements mandated under the FRBM Act. FRBM, if you can recall, we discussed this term in the last class जब we were discussing the newspaper articles, तो हमने इस act के बारे में बात करी थी. तो statements mandated under FRBM Act is a document जिसके अंदर ये दो सब topics होते हैं: macroeconomic framework statement, medium term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement, expenditure budget, receipt budget, expenditure profile, budget at a glance, memorandum explaining the provisions in the finance bill, and outcome budget. So these are the list of documents that are released every year with when the union budget is released. Today we are going to talk about the first document, which is the annual financial statement. And so annual financial statement क्या होता है? It tells you about the estimated receipts and expenditure of the government of India. This should not be 2019-20, this should be 2020 to 2021 because we are talking about the upcoming year. In relation, तो इन सारी years को एक एक साल पीछे से आगे से estimate करो. So this will be 2020 to 21, this will be 2019 to 20, and this will be 2018 to 19. तो जो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है इसमें 3 साल का एस्टिमेट आपको दिया होता है. जो आप जिस ईयर का प्रपोज कर रहे हो बजट, उस साल का एस्टिमेटेड रिसिट और एक्सपेंडिचर. एस्टिमेटेड क्यों? क्योंकि अभी तक हमने खर्चा करा नहीं है, तो आप एस्टिमेटेड रेवेन्यूज और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखते हो फॉर द अपकमिंग ईयर, विच इज 2020 to 2021. And you also present the estimates of the last year. So this will be 20 to 21. This will be 19 to 20. तो जो last year के estimate और आप इससे पहले वाले ईयर का which will be 18-19, आप उस साल का भी कॉलम बनाते हो, लेकिन 2020-21 ये दोनों ईयर का आप एस्टिमेटेड बजट प्रेजेंट करते हो, वेराज इस ईयर का आप एक्चुअल वैल्यू उसमें स्टेट करते हो. सो एक्चुअल एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 18-19 and estimated values for these 2 years are presented in this annual financial statement. I will also show you the actual document. But before we look at that document, it's important that we understand these concepts. So now, annual financial statement में broadly 3 तरीके के funds होते हैं, 3 तरीके के accounts होते हैं जो कोई भी government operate करती है. First is the Consolidated Fund of India. Now, what do we mean by Consolidated Fund of India? So, all the revenues that are received by the government, all the loans that are raised by the government, all the recoveries of loans granted by the government together form the Consolidated Fund of India. तो गवर्नमेंट का जितना भी रेवेन्यू होता है जो गवर्नमेंट रिसीव करती है in the form of loans or in any other form is kept in this fund which is called as the Consolidated Fund of India. तो जो भी खर्चा गवर्नमेंट को करना होता है, any expenditure that the government has to make is incurred from this fund. सारा रेवेन्यू जो है, all kinds of revenues are kept in this fund, and any expenditure that the government has to make comes from this fund. This is called as the Consolidated Fund. But
no amount from this fund can be drawn without due authorization from the parliament. तो कोई भी गवर्नमेंट इस फंड में से जो मनी, जो भी रेवेन्यू, जो भी इस फंड में कलेक्ट होता है, कोई भी गवर्नमेंट बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के इस फंड से पैसा नहीं निकाल सकती है. But each and every revenue is kept in this fund. So how does actually how does the government actually incur the expenditure now, which we'll learn in this public account of India. But consolidated fund से कोई भी पैसा बिना अप्रूवल के, बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के विड्रॉ नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट काइंड ऑफ फंड इज द कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया. कंटिंजेंसी नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक ऐसा फंड है जो एक इमरजेंसी फंड होता है. नाउ दिस इज an imprest placed at the disposal of the President of India to facilitate meeting of urgent unforeseen expenditure by the government pending authorization from the parliament. Now these are expenditures जो बहुत ही unforeseen expenditure होते हैं. Suppose किसी इकोनॉमी में एक unforeseen situation पॉप अप कर गई है, मे बी कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई है, मे बी देयर इज सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा डिफेंस एक्सपेंडिचर. नाउ दीज आर एक्सपेंडिचर्स जो बजट में आप एस्टिमेट नहीं करके चलते हो. सो सपोज आप इन अ पर्टिकुलर ईयर, गॉड फॉरबिड, अगर कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है और जो आपने पहले से ऑब्वियसली फोरकास्ट नहीं करी हुई है, तो आपके यूनियन बजट में उसका एस्टिमेट नहीं लिखा होता है. लेकिन द गवर्नमेंट keeps a certain amount of money which is also written कि कितना मनी गवर्नमेंट इस फंड में रखता है, that is 500 crore rupees. इतना मनी इस फंड में होता है कि इन केस अगर कोई ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन गवर्नमेंट इकोनॉमी फेस करती है, so the money, the expenditure will come from the contingency fund of India. But again, this at the disposal of the President of India. This contingency fund of India is at the disposal of the President, and the President takes a call on where and how to spend this money. But even after the President's decision, there has to be an approval from the Parliament. So even इस fund का पैसा आप बिना Parliament के approval के कहीं पे spend नहीं कर सकते हो. Parliamentary approval is obtained ex post facto. Now, what do we mean by ex post facto? So, ex post facto का मतलब है कि retrospective action. मतलब अगर सपोज कोई अनफोर्सीन सिचुएशन हो गई है, तो आप obviously you won't wait for the Parliament's approval to spend the money. बट डेफिनेटली पार्लियामेंट का अप्रूवल लिया जाता है विद रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन. इसका मतलब होता है कि पैसा पहले डिस्पोज कर दिया जाता है और अप्रूवल बाद में आता है फ्रॉम दी पार्लियामेंट. सो क्या होता है एग्जैक्टली इस प्रोसेस में? पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर सच अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर इज ऑब्टेन्ड एक्स पोस्ट फैक्टो and an equivalent amount is drawn from the consolidated fund to recoup the contingency fund after such ex post facto approval. So what will happen is that जब आपको suppose there has to be an immediate expenditure of some crore rupees, 100 crore rupees the government has to spend because there has been some unforeseen expenditure. So at that particular moment contingency fund में जितने रुपए पड़े हैं, which has to be at all times, it has to be equal to this value which is 500 crore rupees. आप इस 500 crore rupees में से 100 crore rupees निकाल के जहां पे आपको स्पेंड करने हैं आप वहां पे स्पेंड करोगे, and this will be decided by the President of India. Once this happens, जब ये स्पेंड हो गया है पैसा, in the due course of time Parliament will decide, Parliament will approve this मनी. जितना भी मनी स्पेंड करा है कंटिजेंसी फंड से, पार्लियामेंट विल अप्रूव दैट मनी. और एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब यही है कि पार्लियामेंट का अप्रूवल मनी के एक्सपेंडिचर के बाद होता है, एंड वंस द पार्लियामेंट अप्रूव्स द मनी, देन दैट मनी इज टेकन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड प्लेस्ड बैक इनटू द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. सो एट दैट मोमेंट आपने 500 करोड़ में से 100 करोड़ रुपीज निकाले, आपके कंटिजेंसी फंड में कितने रुपए बचे? 400 करोड़ रुपीज.
After some time, the parliament will approve ki okay, 100 crore rupees has been spent on so and so unforeseen issues. So from the consolidated fund of India, जब पार्लियामेंट अप्रूव कर देती है तब 100 करोड़ रुपीस वापस ट्रांसफर हो जाते हैं कंटिजेंसी फंड में, एंड द कंटिजेंसी वैल्यू विल कम बैक टू 500 crores. So at all times the amount of money that's kept in the contingency fund of India has to be 500 crore rupees. But उस मोमेंट में आप यहां से पैसे निकाल सकते हो, लेकिन आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट दैट मनी हैज टू बी taken from this fund and placed back in the contingency fund of India. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. At any point during the lecture, if anything is not clear, please feel free to put it in the chat section. जब भी मैं दोबारा ये Google Meet का पेज चेक करूंगी, so I would come to know कि there is a question or there is a thought that you have shared. So I will read that out and address that if there is a need to address it. So please feel free to do that, because I am on this tab, on the slide tab. I can't check your messages. But I will keep on toggling between the two tabs. So अगर कोई कुछ भी doubt है, कुछ भी thought है, कोई comment है, तो please put it in the chat section. Okay, moving ahead to the public account of India. Now, what is the public account of India? This is the third account that the government maintains under the annual financial statement. Now, money held by the government in trust, are kept in the public account. Now, what do we mean by money held by the government in trust? This is the money जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं गवर्नमेंट के पास, बिलीविंग दैट द गवर्नमेंट विल पे बैक दिस मनी टू अस. तो ये जो बोल रहे हैं हम कि मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इन ट्रस्ट, का मतलब है कि ये पब्लिक का पैसा होता है. नाउ हियर पब्लिक मीन्स पब्लिक, सो इंटरचेंजेबली आपको ये पब्लिक का मीनिंग समझना पड़ेगा कि ये क्या मतलब है एग्जैक्टली. यहां पे यू कैन इमेजिन पब्लिक टू बी एक्चुअली द पीपल्स मनी, बिकॉज इस अकाउंट में लोगों का मनी रखा जाता है. सो प्रोविडेंट फंड्स, small saving collection, income of government set apart for expenditure on specific objects such as road development, primary education, other reserves, special funds, etc. are examples of money kept in the public account. So suppose I invest in some government scheme. Suppose मैंने किसी government scheme में अपने income का कुछ percentage contribute किया हुआ है, then that money will go into the public account. So, वो जो मेरा पैसा है जो मैंने गवर्नमेंट की किसी स्कीम में इन्वेस्ट करा है, जो प्रोबेबली मुझे 2-3 इयर्स बाद वापस मिलना है, वो पब्लिक अकाउंट में जाएगा. एंड दिस हैज बीन केप्ट इन ट्रस्ट. मेरा ट्रस्ट के बेसिस पे इस पैसे को पब्लिक अकाउंट में रखा गया है. सो प्रोविडेंट फंड्स आर वन एग्जांपल. प्रोविडेंट फंड्स लोग मेंटेन करते हैं गवर्नमेंट के साथ, और उसका जो भी पैसा होता है लोगों का, वो पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है. स्मॉल सेविंग्स कलेक्शन, स्मॉल सेविंग्स जैसे सपोज नेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं गवर्नमेंट के जो रिलीज होते हैं, जिसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एनएससी के नाम से भी बोलते हैं हम उन्हें, जो अगेन गवर्नमेंट के पास जाता है जिसका पैसा. ये सारी चीजें जो है ये पब्लिक अकाउंट में रखी जाती हैं. दिस इज द मनी जो गवर्नमेंट को वापस उनके ओरिजिनल ओनर्स को रिटर्न करनी होती है. सो एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द गवर्नमेंट मेक्स, it does that from this account of India, which is the public account of India. So any kind of income that is set apart for expenditure on specific objects such as road development, primary education, that is kept in the public account of India. Public account, sorry, yeah, public account funds that do not belong to the government. ना पब्लिक अकाउंट में भी दो तरीके के फंड्स है. एक ऐसे फंड्स हैं जैसे कि प्रोविडेंट फंड्स हो गए, स्मॉल सेविंग कलेक्शन हो गई, जिनको वापस गवर्नमेंट को रिटर्न करना है. सो पब्लिक अकाउंट फंड्स दैट डू नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट एंड हैव टू बी पेड फाइनली बैक टू द पर्सन एंड अथॉरिटीज हु डिपॉजिटेड देम डू नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन फॉर विड्रॉल्स. सो ऐसे तरीके की मनी, जैसे सपोज मेरा जो मनी है जो मैंने प्रोबेबली प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट करा हुआ है,
अगर गवर्नमेंट को वो पैसा वापस मुझे रिटर्न करना है, सो दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द गवर्नमेंट इज मेकिंग फ्रॉम देयर एंड. बट इस तरीके के एक्सपेंडिचर के लिए किसी भी तरीके का अप्रूवल, पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए होता है गवर्नमेंट को. The approval is obtained when amounts are withdrawn from the consolidated fund and kept in the public account for expenditure on specific objects. तो अप्रूवल तब सीक करा जाता है पार्लियामेंट का जब आप कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा निकाल के पब्लिक अकाउंट में डालते हो और फिर उस पब्लिक अकाउंट के पैसे को फर्दर किसी चीज पे यूज करते हो. The actual expenditure on the specific object is again submitted for vote of parliament for withdrawal from public account for incoming expenditure on these specific objects. So suppose गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट को रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बिल्ड करा है और गवर्नमेंट वांट्स टू स्पेंड सम मनी ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कंसोलिडेटेड फंड से पब्लिक अकाउंट में पहले पैसे ट्रांसफर करेगी. कंसोलिडेटेड फंड से ये पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है, बिकॉज दिस इज द मनी दैट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, सो दैट हैज टू हैव एन अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट. वंस द पार्लियामेंट अप्रूव्स, देन इवन आफ्टर द एक्सपेंडिचर, जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो जाता है तब भी आप अपना वोट ऑफ पार्लियामेंट लेते हो पब्लिक अकाउंट से विड्रॉ करने के लिए, सो दैट यू कैन फाइनली स्पेंड योर मनी. सो पब्लिक अकाउंट में दो तरीके की मनी है, वन दैट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, जो कि जिसके लिए पार्लियामेंट्री रूट अडॉप्ट करना पड़ता है. सेकंड दैट डजंट बिलोंग टू द गवर्नमेंट एंड दैट द काइंड ऑफ मनी दैट हैज बीन केप्ट इन ट्रस्ट विद द गवर्नमेंट, उसके विड्रॉल के लिए कोई अप्रूवल गवर्नमेंट को नहीं चाहिए होता है. तो तीन तरीके के फंड्स, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, इन तीनों का मतलब हमें क्लियर होना चाहिए. ओके, मूविंग अहेड. नाउ जब आप ये डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे, जो प्रोबेबली हम नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे, आज की क्लास में हमारे वी वुडंट हैव इनफ टाइम टू कवर दैट, बट इन द नेक्स्ट क्लास वी लुक एट दीज डॉक्यूमेंट्स एंड यू विल नोटिस दैट देयर आर डिफरेंट ऑफ द यूनियन बजट एंड ब्रॉड डिविजन्स हैं. दो तरीके के बजट बनते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट और दूसरा होता है कैपिटल बजट. व्हाट डू वी मीन बाय रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट? So revenue budget consists of revenue receipts of the government and revenue expenditure. So budget का मतलब यही है कि कितना revenue, कितना receipt आप ले रहे हो, कितने पैसे आपके पास आ रहे हैं और कितना पैसा आप स्पेंड कर रहे हो, कितना एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो. लेकिन रेवेन्यू बजट में जो रिसिट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिट्स. कैपिटल बजट में जो रिसिट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिट्स. And we'll understand what is the difference between revenue receipts and capital receipts. But we should just note कि revenue budget में हम revenue receipts की बात करते हैं, whereas capital budget में हम capital receipts की बात कर रहे हैं. Similarly, revenue budget में हम revenue expenditure की बात करते हैं और capital budget में, यहाँ पे हम revenue expenditure की बात कर रहे हैं, capital budget में हम capital expenditure की बात करेंगे. तो revenue budget समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि revenue receipts क्या होते हैं. Now, revenue receipts can be defined as those receipts which neither create any liability nor cause any reduction. Neither create any liability nor cause any reduction in the assets of the government. They are regular and recurring in nature and the government receives them in the normal course of activities. So, revenue receipts, receipts से समझ में आ रहा है कि this is the money जो government के पास आता है. ना अगर गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आ रहा है, यूजुअली अगर आप रेवेन्यू रिसिप्ट्स को भूल जाओ, यूजुअली भी अगर आपके पास कोई पैसा आता है तो दो तरीके की चीजें हो सकती है. या तो वो आपको कोई लायबिलिटी क्रिएट करे. लायबिलिटी का मतलब है कि अगर सपोज मैंने किसी से लोन लिया, मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि प्लीज गिव मी 10,000 रुपीज टुडे एंड आई विल पे बैक दिस मनी टू यू प्रोबेबली अ मंथ लेटर. सो आई एम गेटिंग सम मनी, दिस इज अ रिसिप्ट. I am receiving it. This is a receipt by me. So I am receiving 10,000 rupees. But because I am receiving this money, it is also creating a liability. Those of you who have read, probably are exposed to accounts in school, would understand this concept better. But I mean, आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास कोई पैसा आ रहा है तो या तो वो कोई लायबिलिटी क्रिएट कर सकता है. कि लायबिलिटी किस सेंस में क्रिएट हुई है कि मेरे पास 10,000 रुपए आज आ गए, लेकिन आई एम सपोज टू, आई एम लायबल, मेरे ऊपर ये
बोझ है कि मुझे ये पैसा वापस रिटर्न करना है. सो दिस मनी दैट आई हैव रिसीव्ड हैज क्रिएटेड अ लायबिलिटी. दूसरी चीज क्या हो सकती है कि रिडक्शन इन द एसेट. सो अगर सपोज मेरे को 10,000 रुपीज मिल रहे हैं, हो सकता है कि मैंने अपनी कोई पुराना एसेट बेचा मार्केट में और उसके रिटर्न में मुझे ये 10,000 रुपीज मिले. सो ऑल्दो आई एम रिसीविंग दिस मनी, बट इन रिटर्न फॉर दिस मनी आई एम लूजिंग आउट ऑन माई एसेट्स. देर इज अ रिडक्शन इन माई एसेट्स. तो ये दो तरीके की चीजें पॉसिबल हो सकती है जब भी कोई एक पार्टी पैसे रिसीव करती है. नाउ वी आर सेइंग दैट रेवेन्यू रिसिट्स आर दोज काइंड्स ऑफ रिसिट्स जो कि कोई ऐसी लायबिलिटी भी नहीं क्रिएट करती और कोई एसेट का रिडक्शन भी नहीं क्रिएट करती. ये जो रिसिट्स होती है ये बहुत ही रेगुलर होती है और रिकरिंग होती है. मतलब ये जो गवर्नमेंट का जो रोज का खर्चा होता है उसके लिए यूज करी जाती है and government receives them in the normal course of activities. Now what exactly are these kind of receipts? We'll cover under this section कि ये receipts ऐसी कैसी receipts हैं जो किसी liability भी नहीं create करती और कोई asset reduce भी नहीं करती government का. But ये definition याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि categorize the following receipts as either revenue or capital receipts, so you will have to keep this in mind कि किसी भी तरीके का receipt जो ना तो कोई liability create कर रहा है गवर्नमेंट पे, ना गवर्नमेंट का कोई asset reduce कर रहा है, उसको हम revenue receipts बोलते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नाउ व्हेनेवर आई एम स्पेंडिंग समथिंग देन पॉसिबिलिटी है कि मैं कुछ एसेट क्रिएट करूंगी, राइट? सो सपोज आई एम स्पेंडिंग 10,000, नाउ इंस्टेड ऑफ रिसीविंग 10,000 रुपीज आई एम स्पेंडिंग 10,000 रुपीज एंड से 10,000 रुपीज में आई बॉट अ न्यू एसेट फॉर माई हाउस. सो देन आई एम स्पेंडिंग सम मनी बट आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग एन एसेट. Now, revenue expenditure is one expenditure which does not result into creation of assets. So again, we have to remember कि ये ऐसे expenditure होते हैं government के जो किसी asset में convert नहीं होते हैं. अब exactly ये किस तरीके के receipts होते हैं, इनके क्या examples हैं या किस तरीके के expenditure होते हैं, इनके क्या examples हैं, वो हम यहाँ पढ़ेंगे. So tax revenues comprise proceeds of taxes and other duties levied by the union. Union here means the government or the central government. Tax revenues को हम बोलते हैं it is an example of revenue receipt. क्यों? क्योंकि अगर आप tax collect कर रहे हो, now tax doesn't really create any liability on you. Tax के collection से आपके ऊपर कोई liability नहीं है. जब हम इनकम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को तो हम ये कोई एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं पे करते हैं कि गवर्नमेंट हमें टैक्स का कुछ रिटर्न देगी. देयर इज नो डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन. डेफिनेटली यू कैन हैव इनडायरेक्ट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट सिंस वी आर द टैक्स पेयर्स ऑफ द कंट्री, वी आर पेइंग सम मनी टू द गवर्नमेंट, देन वी एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट, सम काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड जो हमारे पैसे को जस्टिफाई करे. बट अदरवाइज देयर इज नो डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन कि अगर कोई ऐसा फोर्सफुल लायबिलिटी नहीं क्रिएट होता गवर्नमेंट पे कि अगर उन्होंने टैक्स रेवेन्यूज कलेक्ट करे तो उनको कुछ पैसे रिटर्न करने हैं. सो टैक्स रेवेन्यू कुड बी कैटेगराइज्ड एज रेवेन्यू रिसिट्स बिकॉज इट डजंट क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर इट लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट. टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करके गवर्नमेंट का कोई भी एसेट रिड्यूस नहीं होता. ऐसा नहीं होता कि हमने टैक्स पे करा और गवर्नमेंट ने हमें कोई एसेट एलोकेट करा है. तो टैक्स रेवेन्यू एक ऐसा रिसिट है जिससे ना तो कोई एसेट क्रिएट होता है, ना तो कोई एसेट रिड्यूस होता है गवर्नमेंट का, और ना ही आप कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है गवर्नमेंट की. The estimates of the revenue receipts shown in the annual financial statement take into account the effect of various taxation proposals made in the finance bill. So जब हम annual financial statement देखेंगे तो हम जो revenue receipts के estimate वहां पर देखते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि we also consider the effect of various taxation proposals made in the finance bill. So finance bill जो होता है, so one of the documents in the annual financial in the list of documents is also the finance bill. And finance bill में हो सकता है कि उस साल के लिए कुछ taxation proposals suggest करे गए हो. तो जब हम revenue receipts के estimates की बात करते हैं तो हम उन estimates को इस चीज को कंसिडर करके एस्टिमेट करते हैं कि किसी भी तरीके के प्रपोजल जो फाइनेंस बिल में बनाए गए हैं वो इन एस्टिमेट्स में काउंट करे जाते हैं. और जो दूसरे तरीके के
नॉन टैक्स रिसिट्स हैं जो रेवेन्यू रिसिट्स के अंडर आती हैं, उनके एग्जांपल्स ये हैं: इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट, fees and other assets for services rendered by the government. Revenue expenditure, on the other hand, as we just stated कि revenue expenditure ऐसे expenditure होते हैं जो किसी भी asset creation में result नहीं करते हैं. So it is the normal running of government departments and rendering of various services, making interest payments on debt, meeting subsidy, grant and aid. All grants given to the state government are also treated as revenue expenditure, even though some of these grants may be used for creation of capital asset. Now, किसी भी तरीके के सब्सिडी ग्रांट्स, अगर गवर्नमेंट का कोई डेट है, अगर गवर्नमेंट ने कहीं से लोन लिया है और गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो इन सारी पेमेंट्स को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी तरीके के एसेट्स में रिजल्ट नहीं कर रही हैं. ऑल्दो ऐसा पॉसिबल है कि जितने भी गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है उनमें से कुछ ग्रांट्स यूज करे जाए टू क्रिएट एनी एसेट. सपोज आपने एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट आपने स्टेट गवर्नमेंट को कोई ग्रांट ट्रांसफर करा और स्टेट गवर्नमेंट ने फर्दर वो ग्रांट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में यूज करा. सो इन अ वे यू आर क्रिएटिंग एन एसेट, बट इवन देन वी कंसिडर ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जो हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें हम इन सारे एक्सपेंडिचर्स को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर काउंट करते हैं. Okay. Moving ahead, which is capital budget. Now, capital budget इसका ऑपोजिट है. कैपिटल बजट में हम कैपिटल रिसिट्स और कैपिटल पेमेंट्स की बात करते हैं. कैपिटल रिसिट्स ऐसी रिसिट्स होती हैं जो लायबिलिटी क्रिएट करेंगी या फाइनेंशियल एसेट्स रिड्यूस करेंगी. रेवेन्यू रिसिट्स ऐसी रिसिट्स होती है जो ना तो लायबिलिटी क्रिएट करती है ना कोई एसेट रिड्यूस करती है. लेकिन कैपिटल रिसिट्स आर ऑपोजिट ऑफ रेवेन्यू रिसिट्स, एंड कैपिटल रिसिट्स आर दोस काइंड ऑफ रिसिट्स व्हिच विल लीड टू either creation of liability or reduction of financial assets. These can be, capital receipts can be both non-debt and debt receipts. Again, capital expenditure will be the opposite of revenue expenditure, which is that it leads to creation of assets. Now, what are the examples of capital receipts? Capital receipts are loans raised by the government from the public. लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक. इसका क्या मतलब है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया है पब्लिक से, देन दिस विल गिव सम मनी टू द गवर्नमेंट. अगर मैं एज आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि आप गवर्नमेंट अगर सपोज कोई पैसा कोई लोन ले रही है, तो what will that create? That will give some money to the government, but it will also create a liability. तो किसी भी तरीके का लोन जब गवर्नमेंट लेती है, सो दैट विल गिव मनी टू द गवर्नमेंट, बट दैट विल आल्सो क्रिएट लायबिलिटी. तो ये जो रिसिट है, ये जो ट्रांसफर है, दिस विल बी कॉल्ड एज कैपिटल रिसिट्स बिकॉज इट इज क्रिएटिंग अ liability that the government has to pay back this money. Whereas tax revenues are the kind of receipts which are not creating any liability. So they are called as revenue receipts, whereas loans, money coming from loans, are capital receipts. Borrowings by the government from RBI. तो अगर गवर्नमेंट आरबीआई से कोई पैसा ले रही है, अगेन इट इज क्रिएटिंग अ लायबिलिटी बिकॉज द गवर्नमेंट हैज टू रीपे दिस मनी बैक टू आरबीआई एंड अदर पार्टीज. आरबीआई एंड अदर फाइनेंशियल पार्टीज, the government has to pay back the money. Again, loans received from foreign governments and foreign bodies, again this will be capital receipt because liability create हो रही है. Disinvestment process. Now what do we mean by disinvestment process? Disinvestment process होता है कि जब कोई पब्लिक एंटरप्राइज लिक्विडेट हो रही होती है. डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स सेल और लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स बाय द गवर्नमेंट, यूजुअली सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि आपने नोटिस करा होगा कि किसी पब्लिक एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करने के लिए लिक्विडेट कर दिया जाता है. तो आप क्या करते हो कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और आपने उसको प्राइवेट बॉडीज को सेल कर दिया है, देन दीज प्राइवेट बॉडीज विल गिव यू सम मनी, बट इन रिटर्न व्हाट्स हैपनिंग, इट इज लीडिंग टू अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट. अभी तक वो पब्लिक एंटरप्राइज अगर गवर्नमेंट की
कंपनी थी, गवर्नमेंट की बॉडी थी, तो वो एक गवर्नमेंट का एसेट था। जब आप उसको डिसइन्वेस्ट कर रहे हो, जब आप उसको लिक्विडेट कर रहे हो, तो आपको पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन उस पैसे के रिटर्न में आपका एसेट रिड्यूस हो रहा है। तो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस में भी जो है कैपिटल रिसिट के अंडर आएगा, बिकॉज इट इज लीडिंग टू अ रिडक्शन इन दी फाइनेंशियल एसेट। नेक्स्ट इज रिकवरी ऑफ लोन्स फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड अदर पार्टीज। सो रिकवरी ऑफ लोन्स, जो लोन्स गवर्नमेंट ने स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज को दिए हुए हैं, उन लोन्स की जब रिकवरी गवर्नमेंट करती है तो उसको भी कैपिटल रिसिट किया कहा जाता है। सो लोन, सपोज किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया हुआ है और वो पैसा दोबारा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैपिटल रिसिट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, any expenditure that leads to creation of assets will be called as capital expenditure. Now, expenditure made on acquisition of assets like land, buildings, machinery, equipment, investment in shares, ये सब तरीके के जो एक्सपेंडिचर है ये कैपिटल पेमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर आते हैं, क्योंकि दिस इज लीडिंग टू अ क्रिएशन ऑफ एन एसेट। कोई भी लोन जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को देता है, दैट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाई? क्योंकि जब आप किसी को लोन दे रहे हो, सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट लोन दे रही है स्टेट गवर्नमेंट्स को या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स को या किसी और गवर्नमेंट कंपनी को या कोई कॉर्पोरेशन को, तो गवर्नमेंट की अकाउंट शीट पे ये एसेट के अंडर आएगा। अगर गवर्नमेंट ने लोन दिया है, सपोज गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपए किसी स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करें इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। नाउ गवर्नमेंट के लिए ये एसेट है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि ये 1 करोड़ रुपए वापस गवर्नमेंट के पास आने वाले हैं। सो दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। सो दिस इज एन एक्सपेंडिचर, government is giving this money out, it is an outflow of money, so definitely this is an expenditure, but this is not a revenue expenditure, this is a capital expenditure. Why? Because जब आप loans पे money spend कर रहे हो तो आप asset create कर रहे हो अपने आप के लिए, so it is leading to a creation of asset, and that is why this comes under the category of capital payment.